Great morning class. In the previous class we have done our exercise 2A. Today we will start exercise 2B. Question number 1. In question number 1 we have to find the product of given fractions. Question number 1, part 1 is it is given that 3 by 5 multiplied by 7 by 11. For multiplying the fractions, there we have a rule. Rule is that we have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So answer will be 21 by 55. Now we will do one more part. Part 3. It is 4 by 9 multiplied by 15 by 16. This is 4 4 are 16 and this is 3 3s are 9 and 3 5s are. Answer will be 5 upon 12. Okay students. Now let us take one more part, part 6. In 6th part we have given 5 by 8 multiplied by 1000. ठीक है, यहाँ देखो ये जो 1000 है इससे कैंसिल हो रहा है. 2 4s are 2 5s are and 2 zeros. Next 2 2s are 2 2 5. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25, 5 2s are 10 plus 2 12, 5 2s are 10 plus 1 11 upon 2. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 2 5s एंड 2 6s. नेक्स्ट 2 2s 1 by 2. 562 is to 1 by 2 will be the answer. Okay students. Now we will solve one more part. Part number 10. In 10th part we have given mixed fraction, 2 mixed fraction. We have to find the product of those 2 mixed fractions. Tenth part is 9.5 multiplied 1 is to 9 by 19. हमें इन दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. 2 9s are 18 प्लस 1 19 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 1s are 19 प्लस 9 इट विल बिकम 28 upon 19. 19 cancels with 19 and 2 14. Answer will be 14. Okay students. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 what we have to do? We have to simplify. In question number 1 we have given 2 fractions. We have to multiply those 2 fractions. And in third part we have given 3 fractions. Okay. In second question we have to multiply 3 fractions. Question number 2 part 1. Part 1 is 2 by 3 multiplied by 5 by 44 multiplied by 33 upon 35. 2 cancels with 44, it will become 22. 3 cancels 33, it will become 11. This is 5 7s. This is 11 2s. Answer will be, there is no term in numerator, only one left, so numerator is 1 and in denominator it is 2 multiplied 7. Answer will be 14. Okay students. Okay, we will solve one more part. Sorry, 5th part we will solve. In 5th part we have given 3 mixed fraction. 2 by 17 multiplied by 7 to 9 multiplied by 1
33, 52। हमें ये 3 मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। देखो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ क्या आएगा 17 2 ज़ा 34, 34 को 2 में ऐड करेंगे तो 36/17। यहाँ देखो क्या आएगा 9 7 ज़ा 63 + 2 65/9। और यहाँ से क्या आएगा 52 1 ज़ा 52 और 52 में 33 ऐड करेंगे तो ये आएगा 85/52। अब देखो इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए अगर हमें टेबल अच्छे से लर्न होगी तो ही हम ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 17 5 ज़ा 85, नाउ 9 4 ज़ा 36, 4 cancels with 52, answer will be 13 and 13 5 ज़ा 65, so answer will be 25. Okay students, now question number 3 part 1. In question number 3 we have given find. First part is find 1/3 of 24. One more thing is that in questions where we have given of means multiplication. जहां भी क्वेश्चंस में ऑफ गिवन होगा, सपोज दे आर सेइंग दैट 1/3 of 24 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 24। वन बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 24। वन बाई 3 of 24 means 1/3 multiplied by 24. 3 cancels with 24, answer will be 8. Okay students, let's solve one more part. Part 6. In 6th part we have given 5/11 of ₹220। ये क्या आएगा 5/11 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 220, 11 2 ज़ा और 0, तो आंसर क्या आ गया 5 2 ज़ा 10 और ये 100 और ऊपर रुपीस गिवन है, तो जहां भी हमें यूनिट्स गिवन है तो वहां यूनिट्स हम लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता कि ऊपर क्या गिवन था और हमने क्या निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर यूनिट्स लगाओगे, पेपर में नहीं लगाई तो आप लोगों के मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं। चलो एक दो पार्ट ओरली करते हैं। वी हैव गिवन 5/6 ऑफ एन ईयर। एक ईयर का 5/6 निकालना है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है 5/6 ऑफ एन ईयर, मतलब 5/6 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 10। 10 आंसर आएगा, पर 10 के साथ क्या आएगा मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस में हमें कुछ गिवन है, जैसे इसमें बोला था 5/6 ऑफ एन ईयर, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा आंसर 10 मंथ्स। एक और क्वेश्चन है 3/7 ऑफ अ वीक। 3/7 ऑफ अ वीक, एक वीक में डेज होते हैं 7, 7 से 7 कैंसल, ये जो 3 आया है ये क्या आया है हमारे पास 3 डेज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? 3 क्या आए हैं डेज। एक और पार्ट कर लेते हैं। वी हैव गिवन 7/50 ऑफ अ लीटर। 1 लीटर का 7/50 बोल रहा है, इसको हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, और मिलीलीटर में चेंज करने के बाद क्या आता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल होगा तो 20, आंसर आएगा 140। और 140 क्या आएगा मिलीलीटर, क्योंकि जो हमें लीटर गिवन था हमने उसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया था। ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये आंसर क्या आएगा 140 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चंस। इससे आगे हमारे शुरू हो जाते हैं स्टेटमेंट सम। स्टेटमेंट सम क्वेश्चन 4 इज एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48:4/5 per kg.
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 kgs ऑफ एप्पल्स। क्या कह रहा है, उसने हमें कॉस्ट दी है 1 kg एप्पल की और वो पूछ रहा है 3/4 kgs एप्पल की क्या कॉस्ट होगी। मीन्स 1 की दी है और 1 से ज्यादा की पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी गिवन है, इट इज ₹48 4/5। ये कॉस्ट हमें गिवन है और उसके बाद उसने हमें ना एप्पल दे दी है और उनकी कॉस्ट पूछ रहा है। एप्पल कितने गिवन है, 3/4 kg। यहां 1 था, यहां 3 है, दैट मीन्स ये इससे ज्यादा है। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इट इज 48 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। और इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद जो जिससे कैंसिल होता है वो बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां क्या आएगा हमारा 5 8 ज़ा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे तो 4 और 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 15/4। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3 और ये 4 से कैंसिल होगा, ये आएगा 61। आंसर विल बी 183 रुपीज। यूनिट सबके साथ लगानी कंपल्सरी है, विदाउट यूनिट मार्क्स कटेंगे फिर, ठीक है। ₹183। इतने जो एप्पल हैं वो कितने के आएंगे, ₹183 के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42.5 पर मीटर। 1 मीटर क्लॉथ की उसने कॉस्ट गिवन है और वो पूछ रहा है कितने की बतानी है, 5 3/5 की। सेम ऐसे ही 1 kg एप्पल की दी थी और वो इतने की पूछ रहा था। इसमें 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी है और वो पूछ रहा है 5 3/5 की, ठीक है। यहाँ एज इट इज ये चेंज हो जाएगा, यहाँ कितने मीटर क्लॉथ है वो आ जाएगा, बाकी सारा सोल्व करना है। यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 2/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर करती है, 1 आवर में वो डिस्टेंस कवर करती है 66 2/3 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है कि उसको 9 आवर्स ट्रेवल करना है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, वो हमसे ये वाली चीज पूछ रहा है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। 1 आवर में डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 66 2/3 किलोमीटर्स। ठीक है, अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स में पूछ रहा है। वो 9 आवर्स मतलब जितना गिवन है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कौन सी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये क्या आ जाएगा 1, इट विल बिकम 200 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आ गया 3। आंसर विल बी 600 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 आवर में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी तो 9 आवर में वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक टीन है, उसने कितना, एक टीन है जो ऑयल को कंटेन करता है, उसमें ऑयल है और वो ऑयल बता रहा है कितना, 1 टीन होल्ड्स 12 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टीन्स होल्ड।
एक टीन की क्वांटिटी बता रखी है कि उसमें कितना ऑयल आ सकता है, वो पूछ रहा है अगर उसी टाइप के 26 टीन्स हों तो कितना ऑयल आएगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टीन इज 12 3/4 liters and quantity of oil in 26 such teens will be 12 3/4 multiplied by 26। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी है, बाकी क्या है दोनों को जो ये गिवन है इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस, सर्कस में कोई भी पर्टिकुलर शो के लिए टिकट है हमारे पास और वो टिकट कितनी है 35.5 की। ठीक है, एक टिकट की कॉस्ट है 35.5 और वो कह रहा है उस टाइप की उसने 308 टिकट्स सोल्ड कर दी, मतलब बेच दिए। 308 टिकट्स उसने सोल्ड कर दी हैं, बेच दी हैं। तो वो पूछ रहा है उसके पास टोटल कितनी मनी कलेक्ट हुई है। एक टिकट की कॉस्ट है 35.5, उसने टिकट कितनी सोल्व करी है 308, तो 308 की वो पूछ रहा है कॉस्ट कितनी होगी। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, क्या लिखा था हमने, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कितनी है 35.5। उसके बाद वो पूछ रहा है कि उसने 308 टिकट सोल्व किए, उनकी कॉस्ट, तो 308 के लिए कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स, तो क्या आ जाएगा 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 308, ये आएगा 71/2 मल्टीप्लाइड बाय 308, इट विल बिकम 2 1s 5 and 4, 71 मल्टीप्लाइड बाय 154, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। स्टैक्ड मीन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ऐसे, ये एक बोर्ड है, इसके ऊपर ऐसे दूसरा रख दिया, तो देखो विड्थ चेंज होगी ना, पहले इतनी थी, एक और रखने से इतनी होगी, ऐसे ऐसे उसने कितने बोर्ड्स रख दिए 9 बोर्ड्स रख दिए। ठीक है, एक बोर्ड की थिकनेस वो बता रहा है 3 2/3, वो पूछ रहा है टोटल 9 रखने के बाद वो जो हाइट हुई है वो कितनी होगी। ठीक है, एक की गिवन है थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड, देन वी विल राइट थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स। एक बोर्ड की थिकनेस गिवन है 2/3, 3 2/3। क्वेश्चन नंबर 9, थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड, 1 बोर्ड की थिकनेस है 3 2/3 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे कितने बोर्ड्स हैं 9 बोर्ड्स हैं, तो दैट मीन्स थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स। तो 9 बोर्ड्स की थिकनेस क्या होगी, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 9 बोर्ड की थिकनेस है ये किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ स्टैक। ठीक है, ये जो है इन सारे बोर्ड्स की जो थिकनेस मिलके होगी वो टोटल जो स्टैक है जो उसने बनाया है उसके इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल होगी 3 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9, और यू कैन से 11/3 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 3s, आंसर विल बी 33 सेंटीमीटर्स। छोटी छोटी स्मॉल कैलकुलेशंस हैं, ध्यान से करनी पड़ेंगी, पर अगर ध्यान से नहीं करोगे वही स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएंगे, फिर मार्क्स कट जाएंगे। अगर यूनिट नहीं लगाओगे फिर से मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, जल्दी करना पर जल्दबाजी नहीं। ठीक है, जल्दी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अगर जल्दबाजी करोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, कुछ गलत मिस हो जाएगा, ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाएगी, तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्वेश्चन ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।